Hello, very good morning, students. How are you all? Myself, Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So, students, I'm preparing this video on the topic problem of deficient demand and excess demand. Okay, this is the first part of the topic problem of deficient demand and excess demand. Okay, in the first part of this topic we will discuss about essential concepts related to deficient demand and excess demand, as well as about the problem of deficient demand. And in the second part we will discuss about the problem of excess demand and how we can measure excess and deficient demand, and how we can correct both the situations, either it is deficient and it is either excess demand, right? So come to the point. First of all, we are going to discuss about some essential basic concepts. So basic concepts are here. Number one is full employment. What is full employment? Number two is under unemployment equilibrium, voluntary and involuntary unemployment, and full employment and natural unemployment. Okay. So these all are the topics which are very essentials before the topic, that problem of deficient demand and excess demand. So first of all, you know very well equilibrium, कि equilibrium क्या होता है students. How many of you know about equilibrium? What is equilibrium? Equilibrium means maximum सेटिस्फिकेशन. क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब? क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन. इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन. ओके, मतलब वेयर अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, और यू कैन से वेयर अ प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम satisfaction. Okay, so here see, first point is full employment equilibrium. What do you mean by full employment equilibrium? भाई एम्प्लॉयमेंट कब होगा? भाई प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब जाएंगे, कब सेटिस्फिकेशन होगा? वेन एवर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, और यू कैन से व्हेन सेविंग इज इक्वल इन्वेस्टमेंट. इन दैट केस both producer and seller will be in equilibrium. Is it clear? So it need not necessarily correspond to the situation of full employment. Aggregate demand and aggregate supply may be equal whenever resources are either fully employed or these are under employment. कहने का मतलब ये है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में जा सकती है. क्या? कोई भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में जा सकती है, वेदर ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड और नॉट यूटिलाइज्ड. इज इट क्लियर? ऐसे ही कि सारे लोग एम्प्लॉयड हैं इकोनॉमी में तो भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में जा सकती है, एंड अगर सारे जो भी पीपल्स हैं, ऑल द पीपल्स आर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द इकोनॉमी माइट गो इन इक्विलिब्रियम. की जो इकोनॉमी है वो में भी इक्विलिब्रियम में जा सकती है. ओके, here is an illustration. Let us assume that fuller utilization of resources leads to output worth 10 billion US dollar during an accounting year, but producer may plan output and household may plan expenditure output worth 8 billion US dollars. So resources worth 2 billion US dollars of output remain unutilized. ठीक है, कितने कैपेबिलिटी थी? 10 की. यूज कितने का हुआ? 8 का. तो जो 2 रह गए बेटा, दैट वर अनयूटिलाइज्ड. क्या थे? दे वर अनयूटिलाइज्ड. ओके, सो इक्विलिब्रियम तो किसी सिचुएशन में भी आ जाएगा, बट यहाँ पे देखिए बात आती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड along with the fuller utilization of resources, so that there is no excess capacity or unemployment in the economy. कि इकोनॉमी में एक्सेस ना तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना ही फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी है. ओके, कि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके. ठीक है, सो दैट सिचुएशन विल बी द full employment equilibrium. Is it clear?
So note down on your notebook, full employment equilibrium refers to that situation. Full employment equilibrium refers to that situation in the economy when aggregate supply equal aggregate demand, or you can say saving equal investment, along with the fuller utilization of resources. Along with fuller utilization of resources का मतलब समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्यों कह रहा है? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में उनको अच्छी तरह से पूर्णतया फुली वी हैव टू यूटिलाइज्ड, आफ्टर दैट इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम. एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा? कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग पास, कुछ बच्चे बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कुछ बच्चे पूरी अपनी जी जान लगा देते हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, आफ्टर दैट दे आर गेटिंग गुड मार्क्स, सो दैट विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ओके. वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. बेटा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल. आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं पर उनको काम भी मिल रहा है, उनको क्या हो रहा है, जॉब भी मिल रही है, बट दैट पीपल्स और दोज पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश. मतलब समझे? व्हेन पर्सन्स आर unemployed due to their willingness, they are not willing to work at all. मतलब वो काम किसी भी तौर पे करना ही नहीं चाह रहे हैं. आइदर दे आर मेकिंग एक्सक्यूजेस कि सैलरी कम है या टाइमिंग ज़्यादा है, लाइक नाउ डेज स्टूडेंट्स दे आर सेइंग वी आर हैविंग नेटवर्क इशू एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन सिंपली वेयर people are getting jobs but they are not doing jobs according to their own wish. Okay. Whereas unemployment, involuntary unemployment is that situation where people are not getting jobs even when they are willing to work at the existing wage rate. जो भी रेट इकोनॉमी में चल रहा है उस पे जो लोग हैं वो भी रेडी हैं दैट वी कैन वर्क ऑन दिस राइस ओनली यू गिव मी जॉब, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जॉब. मतलब कुछ भी मिल जाए, हम किसी भी पैसों में जॉब कर लेंगे, ठीक है, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है. दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री में जॉब मिल रही है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं. इनवॉलेंट्री में क्या है, हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, वी आर लुकिंग अहेड फॉर द जॉब्स. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे पहले ही मैं बता दूं, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट इज पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट. बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको खरीदने वाले या उनसे काम कराने वाले भी उतने ही लोग आ जाएंगे. सो इट विल बी द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर supply is equals to demand. It will be the full employment. It will be the full employment equilibrium. It will be the full employment equilibrium. Is it clear? नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें कि जब बेटा सप्लाई जो है लेबर की किसके बराबर है, डिमांड ऑफ लेबर के इक्वल है. किसके इक्वल है, डिमांड ऑफ लेबर. ओके. सो दिस विल बी द फुल एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि कोई भी इकोनॉमी में आप वहाँ पे कितनी भी जॉब्स प्रोवाइड करा दिए बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड. हम मतलब कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पॉलिसी आ जाए, आप कितनी भी वैकेंसी निकाल दीजिए बट वहाँ पे कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर ही जाएगा. ओके. सो अ सिचुएशन वेयर देयर इज सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द environment, that will be natural unemployment. फिर से बता दूं, a level of people or number of people who are
still unemployed even when in the situation of full employment is called natural unemployment. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रेगुलर कंटिन्यूस स्टडी ऑफ द पर्सन्स, मतलब कुछ बच्चे अभी क्या है लर्निंग एज में है, ओके, तो वो अभी स्टडी कर रहे हैं, दे कैन नॉट गेट जॉब्स, ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कहा जाएगा उसको? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बेटे व्हाट इज पॉइंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. मैं बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स डायनेमिक इकोनॉमी. मतलब जैसे इकोनॉमी है वो तो लगातार चेंज होती रहती है ना, रोटेट होती रहती है, ठीक है, तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे लोग जो क्या है जॉब चेंज करने की वजह से कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड कम्स अंडर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट अराइजेस ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि कई बार कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट हैविंग स्टॉक, उनके पास स्टॉक नहीं है तो वो काम नहीं कराएंगे, ठीक है ना. जब वो काम नहीं कराएंगे, एम्प्लॉयज़ विल नॉट गेट जॉब्स, एम्प्लॉयज़ विल नॉट हैव वर्क, देन दे विल अनएम्प्लॉयड, वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. दैट विल कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ रहे हो आप? Likewise, the latest example, due to coronavirus, most of the industries are closed down these days. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं आज की डेट में बंद हैं. तो जब लगातार इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी तो फैक्ट्री विल प्रोवाइड सैलरी टू द एम्प्लॉयज़. आप बताइए क्या फैक्ट्री सैलरी देंगी एम्प्लॉयज़ को? नहीं देंगी. ओके, सो ड्यू टू द रेगुलर डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री, द जॉब्स और द पीपल आर अनएम्प्लॉयड. Okay, the jobs are not there in the market due to proper shutdown or due to the decline of supply of product in the market, कि मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई ही कम हो गई. उस सिचुएशन में भी क्या होगा? लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. ओके, सो व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर शॉर्ट इन सप्लाई, उस कंडीशन में भी क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. इज इट क्लियर? वीडियो को आगे तक देखते रहिए. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. सी पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. बेटा डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी, शॉर्टेज, ठीक है. तो जहाँ पे भी डिमांड की शॉर्टेज हो गई, सिंपली यू कैन से इट इज़ डेफिशिएंट डिमांड. क्या हो गया? डेफिशिएंट डिमांड मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ एडी, मतलब एग्रीगेट डिमांड की जो शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू डेफिशिएंट डिमांड. ओके, अब कैसे क्या हो गया? वेन एवर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, aggregate demand at fuller utilization of resources is greater than aggregate demand at existing output. Okay, so you can say aggregate demand is deficient when AD does not permit fuller utilization of production capacity. मतलब जितने भी रिसोर्सेज थे हमारे पास, हमने उनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है. मतलब विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज AD इज लेस देन दैट इज एग्रीगेट डिमांड. सो वेन एवर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इट इज डेफिशिएंट डिमांड. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम वी विल डिस्कस अबाउट डेफिशिएंट डिमांड. यू कैन सी हियर x-axis is indicating income, y-axis is indicating aggregate demand. As I already told you, the income line will move upward from origin at the angle of 45 degree. Okay, and why it starts from origin? Because always every person in the economy start earning from zero. हर इंसान जीरो से शुरुआत करता है.
Okay, now you can see aggregate demand at fuller utilization will intersect here, but at plant it is intersecting below the aggregate demand existing demand point. So the difference between this aggregate demand at fuller utilization and aggregate demand at planned AD. So the difference between both these points will be termed as deficient demand. Okay, and this is the consequence due to deficient demand. There is gap between aggregate demand and aggregate demand at plant output. This will called deflationary gap. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट डिफ्लेशनरी गैप. क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप. हमेशा आपको याद रखना है डेफिशिएंट डिमांड की वजह से ही क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप पड़ जाता है. सो यू कैन से डिफ्लेशनरी गैप इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. What are the causes of deficient demand? एग्रीगेट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड के जो कॉजेस हैं डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड के, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस reduce in private consumption expenditure, that most of the public entrepreneurs households stop investing in the market, stop demanding the product. In that case aggregate demand will be less than aggregate supply. As well as when private investment expenditure will be increased, in that case also aggregate demand will be lower than aggregate supply, right? Next one is due to reduction in government expenditure. Sometimes the government may cut its consumption expenditure or investment expenditure. जो सरकार होती है अपना क्या कर देती है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्लाइन कर देती है. व्हेन गवर्नमेंट स्टॉप परचेसिंग द कमोडिटीज ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड. And whenever exports are declined, people are not buying from our country, but we are buying from a foreign country, that is rise in imports. In that situation there will be deflationary gap. क्या आ जाएगा यहाँ पे? There will be deflationary gap. So in this video today we have discussed about the basic concepts that are needed or which are very important before study of excess demand and deficient demand. Secondly, we have discussed about deficient demand के बारे में हम लोगों ने बात करी. We have discussed one new diagram regarding that. So all these things we are very very important. As I have already told you, every year board asks questions from this chapter. Okay, so you have to study it properly. Now watch next part of this video to to clear the remaining things. Okay, thank you students for watching this video. Bye bye, take care.